Great evening, my dear friends. So let's start our question answer session. And let me go to the first question. It is there in the chat box. Wow, this is an amazing question. अगर किसी की बद्दुआ मिलती है, then how to be positive? Great. So यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई इंसान कुछ भी थॉट्स आपके प्रति वो रखता है, उसका इम्पैक्ट होता है फॉर श्योर। अगर किसी इंसान को आपने हर्ट किया है और उसके बैड वाइब्स आपको मिल रहे हैं या फिर बद्दुआ हम लोग एक नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं जो आपने पूछा है, द बेस्ट थिंग इज टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। द बेस्ट थिंग इज टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपको फॉरगिव करेगा, वी डोंट नो, लेकिन हमें फॉरगिवनेस के लिए उसे रिक्वेस्ट करनी है। दिस इज व्हाट बेस्ट वी कैन डू। लेकिन अगर समझो आपकी कोई गलती ही नहीं है, only there is some kind of misunderstanding, just say God bless you, then just say God bless you। देखिए जरूरी नहीं है कभी कभी हम किसी के लिए कुछ बुरा करेंगे तो ही लोग बद्दुआ भेजने वाले हैं। कभी कभी हम लोग बहुत जबरदस्त कर देते हैं, जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जलते रहते हैं और वो नेगेटिव वाइब्स सेंड करते हैं। तो कैसे मैनेज करें? या फिर कुछ दुश्मन होते हैं वो भी नेगेटिव वाइब्स सेंड करते हैं, तो उससे कैसे बचे? एकदम आसान तरीका है, उनको ब्लेसिंग्स भेजिए। मैंने आपको हर बार कहा है कि दिन में एक बार, whenever you pray, whenever you meditate, please send blessings to all। सभी लोगों को, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों को आप ब्लेसिंग्स भेजिए, दुआएं भेजिए। अगर आप उनको ब्लेसिंग्स भेजना शुरू करेंगे, you will get a divine protection। You will get the divine protection because you really never know who is your enemy, who is sending you the bad vibes. You really don't know. So it's the best solution. I have been using that. And it works like magic. So go ahead, do that. In case जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है आपको, अगर आपसे कुछ गलती हुई है, उसके वजह से वो इंसान नाराज है और आपको बैड वाइब शेयर कर रहा है, then please ask for forgiveness and keep on sending, again same formula, keep on sending blessings along with that। There is one amazing formula actually, Ho'oponopono। There is one system actually, I'm not that much aware of that, but there is one formula actually which you can repeat again and again. I love you, thank you so much, please forgive me, and God bless you, something like that। There is one formula, Ho'oponopono, you can just check it out। So this is what you can say। So basically आपको forgiveness के लिए किसी को request करनी है, and along with that you have to send the blessings in nutshell, sweet and simple। Great, amazing। So let me go to the next question। So go ahead my dear friends, if you have any questions just put it in the chat box, or else you can raise your hand and I will put you in the spotlight। You can raise your hand, I will put you in the spotlight, otherwise you can post your question in the chat box। अगर आपको कुछ privately पूछना है, the chat box is yours, you can send me your question privately। No one else will ever understand except you and me, so get that clarity। So waiting for your questions my dear friends। Just raise your hand in case you have any question. You can ask me anything। See, this session is not related to only question regarding the personality development, in general also whatever challenges you are facing। In case अगर आपके जिंदगी में आपने कुछ अचीव किया है, if you have achieved something recently, it may be very small, but if you want to share that, go ahead, do it। It can be very small achievement, लेकिन आपने ये सिस्टम को फॉलो किया और इसकी वजह से जो आपको रिजल्ट मिला है, so those are the wins, those are the achievements, so you should share with all। So it's like you can share that great energy with others, so वो लोग भी वो सिस्टम फॉलो करना शुरू करेंगे। So recent एक, चलो मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ without taking anyone's name। So basically एक बंदा है, उसको जरा फाइनेंशियल चैलेंज हुआ था, तो उसने शेयर मार्केट में वगैरह बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो सिस्टम प्रॉपरली नहीं चल पाई, वो बहुत चैलेंज में था, उसको पैसे की जरूरत थी, किसी को पैसा उसको देना था। तो उसने मुझे कॉल किया और कहा कि आई वांट सम मनी। आई सेड व्हाई डोंट यू आस्क यूनिवर्स फॉर दैट, इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी और एनीवन एल्स, व्हाई डोंट यू आस्क यूनिवर्स फॉर दैट। तो उसने वो सिस्टम फॉलो करना शुरू किया।
और जो पैसा उसे किसी को देना था वो बार बार मन ही मन सोचने लगा कि मैंने पैसा दे दिया है, 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 वो बार बार सोचते रहा। उसको मुझे लगता है ये मंथ में 10th या 11th को पैसा देना था, 10th एंड 11th आ गया तो भी पैसे का कोई नामो निशान नहीं था, कोई भी सोर्स ओपन अप नहीं हो रहा था। और लास्ट मोमेंट पे उसके दोस्त ने उसे कुछ फोन किया, दोस्त से बातचीत हो रही थी, तो दोस्त को लगा यार उसका आवाज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसने पूछा क्या हुआ है, तो वो मौके पे उसने बोला कि यार ऐसा ऐसा चैलेंज है, मुझे पैसे की जरूरत है। तो उसने सामने से जो भी अमाउंट उसे चाहिए था, अच्छा खासा अमाउंट था, उसे ट्रांसफर कर दिया, उसका काम हो गया। और उसके साथ अमाउंट रिटर्न करने के लिए उसको बहुत ज्यादा टाइम भी दिया है। सो दिस इज ऑल मैजिकल माय डियर फ्रेंड्स। व्हेन यू फॉलो अ सिस्टम देन यू आर गोइंग टू गेट अ रिजल्ट। अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब जरूर पढ़िए, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब आपको ऑडियो बुक में अवेलेबल है। अगर आपको लगता है नहीं यार ये पढ़ने में मजा नहीं आता, गो फॉर ऑडियो बुक। अगर ऑडियो बुक में भी मजा नहीं आता देन गो फॉर सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड थिंक एंड ग्रो रिच, अनबिलीवेबल बुक्स। currently I am reading Think and Grow Rich, maybe third or fourth time। और मुझे वहां से जो डायमंड मिल रहे हैं क्या बताऊं आपको, गूज बम्स आते हैं, गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो पेजेस में जो नॉलेज दिया हुआ है ना यार, जिंदगी बदलने वाला नॉलेज है, ट्रस्ट मी, एंड इट इज अवेलेबल फॉर फ्री। और ऐसे ही होता है, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, वो नेचर या यूनिवर्स फ्री में दे देता है, वो नेचर या यूनिवर्स फ्री में देता है। जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि सनरेज, वाटर, ये चीजें हमें बहुत इजीली मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, और इसलिए हम उसको इतना केयर नहीं करते। सी ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड विद अमेजिंग बॉडी। ये जो बॉडी हमें मिली है, इतनी जबरदस्त बॉडी हमें मिली है, लेकिन वो फ्री में मिलने की वजह से बहुत सारे लोग ग्रांटेड पे लेते हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि वो कुछ उनकी पसंदीदा चीजें खा पाए, मतलब वो खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खा रहे, वो खाने के लिए जी रहे हैं। और जिसकी वजह से उनको हेल्थ के बहुत सारे चैलेंजेस है, या फिर एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते। आर यू इनटू दैट? आस्क योरसेल्फ। सो आई रिक्वेस्ट यू, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सी आई कैन सी वन डॉक्टर ओवर हियर। अगर आप आपके बॉडी को शार्प नहीं करेंगे तो डॉक्टर आपके बॉडी को शार्प करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मतलब जो चीजें फ्री में मिलती है, और उसी तरह से पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, unbelievable books. One more book I would suggest is Science of Getting Rich. Science of Getting Rich. Amazing books. All available for free, my dear friends. For free. If you go on Google, just put it ebook, you will get all the ebooks. I'm not sure whether you will get it in other languages or not. मतलब फ्री में मिलेगा कि नहीं बाकी के लैंग्वेज में, हिंदी मराठी में, लेकिन आपको इंग्लिश में तो जरूर मिलेगा। एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड रीड इट इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज जो उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, वो जब कन्वर्ट होते हैं किसी भाषा में तो उतना मजा नहीं रहता उसमें। उसमें जो दम रहता है वो वर्ड में, वो ऑथर ने जो वर्ड लिखा है उसमें दम है मेरे दोस्त, उसमें बहुत बड़ा दम है। सो आई वुड से go for English language only. Trust me, it will create magic in your life. Great. So I can see one question over here. Wow. So यहाँ पे पूछा है कि विजुअलाइजेशन जब हम लोग करते हैं, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन या फिर जो भी सिस्टम, वहां पे इमोशंस कैसे क्रिएट करें। मतलब इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट। सो इमोशंस क्रिएट कैसे करें। इमोशंस तभी क्रिएट होंगे जब एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर होगी, बर्निंग डिजायर, पागलपन, उसे हम लोग ऑब्सेशन भी कह सकते हैं। ऑब्सेशन का मतलब क्या है, भूत सवार, सनकी दिमाग। ये जो पागलपन जब आपको आएगा ना आपके गोल के लिए, आपके टारगेट के लिए, तभी वो इमोशंस क्रिएट होंगे और रोंगटे खड़े होंगे, रोना आएगा, विजुअलाइज करते समय रोना आएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बर्निंग डिजायर क्रिएट कीजिए। तो बर्निंग डिजायर कैसे क्रिएट करें। सो बर्निंग डिजायर क्रिएट करने के लिए आपको डू और डाई सिचुएशन में जाना पड़ेगा। डू और डाई, चलो मैं आपको एक आइडिया देता हूं जहां से आप बर्निंग डिजायर क्रिएट कर सकते हो। आपका जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, दुनिया में सभी लोगों को बता दो ये मेरा टारगेट है, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव।
सबको बोल दो ये तारीख तक इतने इतने दिनों में इतने इतने महीनों में मैं ये टारगेट कंप्लीट करने वाला हूं। टेल एवरीवन। और ये जब आप सोशल मीडिया या फिर पर्सनली किसी को बताएंगे जो भी आपका गोल है, और जो मैं आपको गोल रिक्वेस्ट करूंगा, गोल बड़ा रखिए, छोटा गोल मत रखिए, जरा बड़ा गोल रखिए। वो बड़ा गोल जब आप दुनिया के साथ शेयर करेंगे तो लोग आपको कहेंगे तू साइको है, तू पागल है, स्क्रू तेरा ढीला हो चुका है, तुझे डॉक्टर की जरूरत है। लोग आपको बहुत गंदे गंदे ताने मारेंगे, और जब वो ताने मारेंगे ना, तब आपके अंदर का वो आत्मसम्मान जागृत हो जाएगा। विल फील लाइक डूइंग समथिंग। आपको लगेगा यार कुछ तो अभी करके दिखाना है, और वो आपको बर्निंग डिजायर देगा। दैट इज गोइंग टू गिव यू द बर्निंग डिजायर। दिस इज वन ऑफ द वे। बर्निंग डिजायर क्रिएट करने के बहुत सारे ऑप्शन है। कभी कभी नेचर, यूनिवर्स वो बर्निंग डिजायर क्रिएट कर देता है, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है जहां से आपको बर्निंग डिजायर क्रिएट हो जाती है। So I'll give you one of my example. मैं जब मैं सिंगापुर में जाने वाला था, टोनी रॉबिन्स का प्रोग्राम मुझे अटेंड करना था, तब मैं जॉब नहीं करता था। आई वाजंट डूइंग जॉब। जॉब मैंने 2016 में क्विट किया था, और जॉब का जो भी मेरा पैसा बचा हुआ था, प्रोविडेंट फंड, ये वो सब ट्रेनिंग में यहाँ वहां पे गायब हो गया था, और मेरे अकाउंट में उतना ज्यादा कुछ पैसा नहीं था। और मुझे टोनी रॉबिन्स की ट्रेनिंग अटेंड करनी थी, और उसके लिए मुझे 1.5 लाख की जरूरत थी। आई वांटेड 1.5 लाख। समाउ मुझे लगता है मेरे अकाउंट में 50,000 समथिंग थे, तो मैंने 50,000 रुपीज दे दिए, बिकॉज वो टिकट्स, ये वो होटलिंग वगैरह, उसमें 50,000 मुझे पहले ही एडवांस में देने पड़े। एडवांस में मुझे देने पड़े, और मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी, और मेरे पास मुझे लगता है अराउंड 5 मंथ्स थे। मुझे पता नहीं था वो कैसे होगा, लेकिन मुझे ये पता था अगर मैं 1 लाख रुपया नहीं जमा करता हूं तो सिंगापुर टाटा बाय बाय, टिकट वगैरह सब कैंसिल। और वो टाइम पे मैंने वो बर्निंग डिजायर वो क्रिएट हो गया, बिकॉज अभी मैं पानी में गिर गया था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। कैसे भी करके 1 लाख रुपीज मुझे मैनेज करने थे। यू वोंट बिलीव, बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट वन क्लाइंट। I got one client. God bless them. I don't want to take their name right now. God bless them. Thank you so much for helping me. उनको मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग दी, and they paid me 1 lakh rupee for that. I'm talking about 2018. I'm talking about 2018. 2017 to be precise. 2017, this period only, August, September, October and all. This is a phase where I gave the training and I got that money, and because of which I've been to Singapore. जब तक वो बर्निंग डिजायर नहीं होती तब तक वो इमोशंस नहीं आएंगे, पागलपन नहीं आएगा। There are different ways by which you can create a burning desire. कभी कभी नेचर खुद क्रिएट कर देता है, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है, आपकी इज्जत निकालता है, कुछ लोग आपको बहुत कुछ गलत बोल देते हैं, तो उससे वो इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं, वो बर्निंग डिजायर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बर्निंग डिजायर, मैडनेस, ऑब्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दोज इमोशंस, वो गूज बम्स क्रिएट होने के लिए। सो गो फॉर दैट। दिस इज व्हाट आई विल से। वन मोर ऑप्शन इज लाइक यू कैन डू दैट एक्टिंग। अगर आप एक्टिंग कर पाते हो, ऐसे इनएक्ट कर पाते हो, इतना आसान नहीं है वो एक्टिंग करना, वो खुद के अंदर के एक्टर को जागृत करना, लेकिन आप कर सकते हो। बट इफ यू हैव द बर्निंग डिजायर, देन एक्टिंग इट्स becomes very easy. Rather it becomes natural. I would say instead of acting, it becomes very natural because you're mad about it. I hope you got the answer. So let me go to Gaurav over here. Gaurav, can you please turn on your video? You raise your hand. I will put you in a spotlight. Great, Gaurav. I'm putting you in a spotlight. Just give me a few seconds. Go ahead, my dear friends. Go ahead, unmute yourself. Ask your question. सर, जैसे आपने विजुअलाइजेशन के लिए बर्निंग डिजायर की बात की, अपन वो हाईलाइट भी करते हैं, टाइमिंग भी आगे पीछे कभी हो जाते हैं, बट वो टास्क कंप्लीट होने के लिए कुछ हर्डल्स आ जाते हैं या टास्क कंप्लीट नहीं होता है, जैसे विजुअलाइजेशन। तो उसके टाइम पीरियड में अपने इमोशनली कैसे अपने आप को संभाले? मतलब कुछ कोई रहता है ना कि अपन किस चीज के लिए डील कर रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट रहेगा, या तो कोई अपने ड्रीम्स है, या तो कुछ भी चीज है टाइम पे डेली। आज मैं कुछ काम के लिए कुछ अपने भी ड्रीम्स रहते हैं, या इनकम भी रहती है, या कुछ मुझे आपने बोला कि ये टारगेट रखो, ये लेना है, डिस्प्ले कर दो या सबको बोल दो, बट उसको वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता टाइम पे। तो जो पॉसिबिलिटीज है उसमें कैसे बैलेंस रखने का अपने आप को? ग्रेट ग्रेट। सो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखो अगर कोई टारगेट आप हिट नहीं कर पाते हो, देन ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट।
जब भी आपको कोई भी चीज में फेल्यूर एक्सपीरियंस होता है, कोई भी टारगेट में, सो डू नॉट टेक इट एज ए फेल्यूर, टेक इट एज ए लर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा कोट है एक्चुअली, ऑब्स्टैकल ये ऐसी चीज है, मतलब ऑब्स्टैकल है ऐसी चीज है, वो आपको तभी दिखती है जब आपका ध्यान गोल पे नहीं होता। मैं फिर से एक बार बताता हूं, ऑब्स्टैकल ये ऐसी चीज है जो आपको तभी दिखती है जब आपका ध्यान गोल पे नहीं होता। समझ में आ रही बात? जब भी आपके जिंदगी में कोई भी टारगेट के लिए ऑब्स्टैकल आएगा, ट्राई टू लुक एट इट इन अ पॉजिटिव वे। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज रियली अमेजिंग कंसेप्ट। आपके जिंदगी में आप थोड़ा सा एनालाइज करके देखो, आपकी जिंदगी में जो भी ऑब्स्टैकल्स आए थे पास्ट में, और उनको आपने सरपास किया और आपने वो टारगेट अचीव किया, और अभी आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा यार वो जो ऑब्स्टैकल आया था वो बहुत जरूरी था। अगर वो ऑब्स्टैकल नहीं आता तो मुझ में वो डेवलपमेंट नहीं होती और मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता, या फिर टारगेट कंप्लीट करने के बाद जो मेंटेन करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो मुझ में नहीं होती। तो बेसिकली एकदम सिंपल टर्म्स में आपको बताऊंगा, आपकी जिंदगी में, मेरे जिंदगी में जो भी ऑब्स्टैकल्स, चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ डूइंग द विजुअलाइजेशन अफर्मेशन, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको आपके बड़े ड्रीम के लिए तैयार कर रहे हैं। इट्स अ प्रिपरेशन, आपको मेंटली और फिजिकली वो स्ट्रांग बना रहे हैं वो बड़े सपने के लिए। बिकॉज जो बड़ा सपना आपके इर्द गिर्द होगा, जो बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, तो वो मोमेंट पे आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। एंड फॉर दैट प्रिपरेशन इज देयर, फॉर दैट दोस ऑब्स्टेकल्स आर देयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yeah, so look at obstacles in that way. Rather you just ask yourself what this obstacle is trying to teach me. ये जो obstacle है, ये जो challenge है, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? Just have a broad smile on your face and face that obstacle. सर बट उसमें इमोशनली बैलेंस रहने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने बोला ऑब्स्टेकल अंडरस्टैंड हो रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो हर्डल्स है, जो भी समझ रहा हूँ मैं, बट उसके आगे कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी, मैं दूसरी 10 चीज अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ, वहाँ पे इजीली कनेक्ट हो रहा हूँ या कुछ नई चीज क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट बना रहा हूँ, बट सम चीजें ना आगे उसमें बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बोला कि आपने अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, पर उसको थोड़ा सा बैलेंसफाई करना पड़ेगा ना। देखो, इमोशंस जो होते हैं वो हमारे फोकस के ऊपर डिपेंडेंट है। जहां पे आपका फोकस होगा वैसे इमोशंस क्रिएट होंगे। अगर आपने ऑब्स्टेकल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा तो आपके इमोशन चेंज हो जाएंगे। ऑब्स्टेकल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा तो आपके जो इमोशंस है वो बहुत डायनेमिक इमोशंस हो जाएंगे। यू विल बिकम वेरी पावरफुल, यू विल बी पम्प्ड अप। और मैं आपको एक जबरदस्त आइडिया देता हूं, देखिए जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, जो भी फील्ड में, वो फील्ड के जो बापू लोग हैं ना, बापू जिन्होंने करोड़ों खरबों कमाए हैं, तो उनसे जरा सीखने की कोशिश करो कि उन्होंने क्या किया। बिकॉज वो भी कभी ना कभी आप ही के जैसे थे, तो उन्होंने वो टाइम पे क्या किया था समझने की कोशिश करो। वो किताबें पढ़ो, वो वीडियो देखो। बिकॉज कैसे, देखो मेरे दोस्त, सिर्फ आप विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, बिलीफ ये तो जरूरी है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट यू नीड स्ट्रेटेजी ऑल्सो, यू नीड स्ट्रेटेजी ऑल्सो। सो 5 to 10% तो रोल स्ट्रेटेजी का है। आप गलत स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो आई वुड से व्हेनेवर यू आर फेसिंग द रोड ब्लॉक, एनी ऑब्स्टेकल, देन ट्राई टू चेंज योर अप्रोच। एक ही अप्रोच बार बार मत ले लो। Okay. अगर वहां पे अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो शायद आपको अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। तो कभी कभी कैसे होता है मेरे दोस्त, कभी कभी हमें 10 ऑब्स्टेकल्स को फेस करना है और 11th में आपको सक्सेस मिलने वाला है। समटाइम्स विद द सेम सिस्टम, जो सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो, 10 अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं मिलेगा, शायद 11th अटेम्प्ट में रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो जो अटेम्प्ट करने का हमारा तरीका वही गलत होता है। मतलब वहां पे 10 लाख भी अटेम्प्ट किए तो भी फेलियर ही आने वाला है। लेकिन आपको बताएगा कौन? चैलेंज तो ये है ना कि ये जो सिस्टम में फॉलो कर रहा हूं यही फॉलो करूं या फिर अलग फॉलो करूं, ये आपको बताएंगे आपके मेंटर्स। मतलब वो फील्ड के जो बापू लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी वो टारगेट अचीव किया है, तो वहां से आपको कुछ लिंक्स मिल सकती है। सक्सेस लीव्स क्लूज, वो जो क्लूज है, वो जो हिंट्स है, वो आपको पकड़ने हैं।
एंड आपका सबकॉन्शियस भी आपको बताते ही रहेगा फॉर श्योर कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अलोंग विद दैट यू नीड टू मॉडल. टोनी रॉबिन्स सेज इट एज अ मॉडलिंग. आपके जिंदगी में जो भी आपको टारगेट अचीव करना है, वो टारगेट जो भी इंसान ने ऑलरेडी अचीव किया है, लुक एट हिम एज अ मॉडल and try to follow that system. I hope you got my point. Yes. Great. Awesome. Thank you so much for your fantastic question. Thank you, sir. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Let me go to the next question. I can see need little help for success song. Okay. तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप सक्सेस सॉन्ग बनाते हैं, इट नीड नॉट बी परफेक्ट. उसको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है. मेनली आपके मन में वो खुशी का एहसास पैदा होना जरूरी है. देखो, आप जब सक्सेस सॉन्ग बनाएंगे तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक हिंट देता हूं कि जो भी आपके टारगेट है वो पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे वो सक्सेस सॉन्ग में आपको डालना है. आपका जो भी टारगेट है, मिशन है, वो पूरा हो चुका है, ना कि पूरा होने वाला है, पूरा हो चुका है. ये डायरेक्शन में, ये स्टाइल में आपको वो सॉन्ग बनाना है. और वो सॉन्ग बनाने के बाद जरूरी नहीं कि आपके वाइफ को या फिर आपके दोस्तों को, पेरेंट्स को सॉन्ग पसंद आए. नो. शायद वो आपके ऊपर हंसे या फिर वो इरिटेट हो जाए आपका सॉन्ग सुन, कुछ फर्क नहीं पड़ता. व्हाट मैटर्स, आपको इमोशंस फील होना बहुत जरूरी है. अगर आप इमोशनल हो गए, आपको मजा आ रहा है, गो अहेड, डू दैट. आपका आवाज कैलाश खेर की तरह, सोनू निगम की तरह होने की जरूरत नहीं है. आपको जावेद अख्तर की तरह लिरिक्स लिखने की जरूरत नहीं है. मेरे दोस्त, करो. और जो भी आपने सक्सेस सॉन्ग बनाए, शेयर विथ मी. If you want some validation from my side, just send me on my WhatsApp. I will check that and I will give you feedback for it. Great. ग्रेट. सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स के नाम बताइए. देखो, इंडिया में भी बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और फॉरेनर्स भी बहुत जबरदस्त है. और मैंने शायद आपको एक लिस्ट शेयर की थी पहले भी, तो भी अभी फिर से एक बार मैं कुछ नाम मेरे जो जबान पे मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहला मैं नाम बताऊंगा, वो है मतलब इंडियन स्पीकर्स में ऑब्वियसली संदीप महेश्वरी. आई होप यू नो दैट. संदीप महेश्वरी हो गए, उसके बाद विवेक बिंद्रा हो गए, जो इंडियन स्पीकर है, जो हिंदी में बात करते हैं. उसके साथ और एक नाम मैं बताऊंगा, सोनू शर्मा, बहुत जबरदस्त है. इसके बाद हर्षवर्धन जैन, बहुत जबरदस्त है. इसके बाद हिंदी में कोई कोई वीडियो गौर गोपाल दास जी, इनके भी है हिंदी में, तो वो भी शायद आप रेफर कर सकते हैं. सो ऐसे कुछ स्पीकर्स हैं जो हिंदी में बहुत जबरदस्त बोलते हैं. तो अगर आपको उनके वीडियोस देखने हैं तो आप उनका इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए. इसके अलावा जो यूट्यूब है वो फॉलो कीजिए, इवन फेसबुक. तो ये सब जगह पे उनके वीडियोस होते हैं और उनके वीडियोस आप बार बार देखिए. यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप जब जाएंगे तो उनके वीडियोस बार बार देखिए, तो क्या होगा, उनके ही रिकमेंडेशन आपको आएंगे या फिर उनके जैसे और जो स्पीकर्स है उनके वीडियोस आपको दिखना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू शुड डू. या दिस इज व्हाट यू शुड डू टू गेट देयर वीडियोस. What if we are the first one to follow the goal? Wow, now this is really amazing question. This is really amazing question, and I really like this question. My idealistic personality. Amazing question, my dear friend. मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपको कोई टारगेट अचीव करना हो तो आपको क्या करना होगा, एक मेंटोर ढूंढना होगा या फिर एक मॉडल ढूंढना होगा, एक इंसान ढूंढना होगा, जिंदा हो या मर चुका हो, तो उसको एक टारगेट की रखना कि उसने क्या किया, वो सिस्टम फॉलो करना. लेकिन यहाँ पे सवाल ये आया है कि अगर ऐसा कुछ मेरा टारगेट है जो अभी तक किसी ने कंप्लीट ही नहीं किया है, तो क्या करें? What is to be done in that case? Really amazing question. I would say then you need to believe and rely on your subconscious mind. यहाँ पे मैं रॉजर बैनिस्टर का आपको एग्जांपल दूंगा. शायद मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है. रॉजर बैनिस्टर, ये ऐसा इंसान था, 1950s की बात है. एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने 1 माइल की जो रेस है, रनिंग की रेस, वो 4 मिनट के अंदर कंप्लीट कर ली हो. ऐसा कोई भी इंसान नहीं था. तो वो टाइम पे वो रेफरेंस क्या लेता? देयर वाज नो रेफरेंस. सो ही जस्ट बिलीव्ड इन हिमसेल्फ. इट इज पॉसिबल. आई एम गोइंग टू बी दैट पर्सन. I am going to be that person. I am going to be that first person. And he started visualizing that, started doing affirmation, started training, and he did that. My dear friends, he did that. 1 mile race. 1 mile race. He completed within
4 minutes, 4 मिनट के पहले उसने कर दिया। और जब उसने कर दिया, you know what happened when he did it, उसके बाद हजारों लोगों ने कर दिया। So many people did it. Why? Because there was a reference. लेकिन अगर रेफरेंस नहीं है, you be the reference, you be that inspiration for all. So this is what you should do. Yeah, this is what you should do. You can rely on the subconscious mind, and subconscious mind has infinite potential, infinite power. So it will provide you that all the hints, what system you need to follow. Give it a try. There are so many people who did it. I will give you one more example. Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar ये ऐसा इंसान था जिसने वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाए थे फर्स्ट टाइम। तभी तक किसी ने नहीं बनाए थे। 194 सईद अनवर करके पाकिस्तान का प्लेयर था, 194 कितने सालों के लिए उसका रिकॉर्ड था, कितने सालों के लिए। Sachin Tendulkar broke that, and after that so many cricketers scored 200 runs. रोहित शर्मा ने तो 3 बार बना दी, वीरेंद्र सहवाग ने आई गेस 2 बार बना दी। It's possible. So you be that role model for all. Why not? Believe in yourself. You can be that magical person. And thank you so much for this amazing question. God bless you, my dear friend. So let me go to the next question. Wow, so there is amazing comment by someone. Thank you so much, my dear friend, for appreciation. Someone says my background is very inspiring. Thank you so much. Hence I kept it. So there is one question. How to be self-dependent? If I am dependent upon someone, then what should I do? I can't even lose that other person also. So this is a very dangerous situation. Never ever depend on any other person, because वो इंसान कब चले जाए, you really never know, and it is not in your hand, my dear friend. It is not in your hand. It's a basic law of happiness. मैं ऐसे नहीं कह रहा, do not take help from others. Take help from everyone. You also help them. Take help from everyone, but don't be very dependent. हाँ, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप हेल्प लीजिए, कोलैबोरेशन कीजिए, लेकिन अगर वो इंसान चले गया, ओके, अगर वो इंसान चले गया, then God will send you another person. God will send another person, maybe far more better than this person. Think like that. देखो, वो जो इंसान है जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है, because of anything, maybe for business reason, maybe for some personal emotional reason, whatever it may be, जो भी आपकी अटैचमेंट है, कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज है वो इंसान के अंदर जिसकी वजह से आपको खुशी मिल रही है। आपके अंदर जो भी कमी है, वो कमी को कंप्लीट करने का काम, एक वॉइड को फील करने का काम वो इंसान कर रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट टू दैट। ऐसे लोग होते हैं हमारे जिंदगी। अगर वो इंसान ही चला गया तो क्या करें? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंसान ने जो भी वॉइड फिलअप किया है, उसमें कुछ ना कुछ तो एक क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी के ऊपर आप फोकस कीजिए। जस्ट फोकस अपॉन दैट क्वालिटी, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग यार वो गया अभी क्या होगा। नो, यू फोकस अपॉन दैट क्वालिटी, जो क्वालिटी की वजह से आप फुलफिल फील करते हो, बहुत जबरदस्त फील करते हो। इफ यू फोकस ऑन दैट क्वालिटी, माय डियर फ्रेंड, यू विल अट्रैक्ट अनदर पर्सन विद द सेम क्वालिटी। यू विल अट्रैक्ट अनदर पर्सन विद द सेम क्वालिटी। लेकिन चैलेंज ये है, यहाँ पे दुनिया में मैक्सिमम लोग जो उनको नहीं चाहिए उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जो चीज उन्हें नहीं चाहिए उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो क्या होता है, उनके जिंदगी में वैसे ही लोग ज्यादा आते हैं और वो सिलसिला जिंदगी भर चालू रहता है। और वो फिर इतने कड़वे बन जाते हैं कि जिंदगी बहुत बकवास है, मेरे जिंदगी में कुछ नहीं बचा, ये संसार सब मोह माया है, या फिर यहाँ पे सब लोग स्वार्थी होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं यार 30 साल का एक्सपीरियंस है, एक भी अच्छा इंसान नहीं है दुनिया में। ऐसे लोग बोलते हैं, आपने बहुत बार सुना भी होगा। ऐसा क्यों कहते हो? बिकॉज वो ऐसे चीजों के ऊपर फोकस करते जो उसे नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट आई विल से।
take help from someone, love people. See, I'm not saying be independent, love people, but at the same time do not be so dependent that you will lose your happiness. You will lose your happiness. इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, if you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Let me repeat, if you want to live a happy life, tie your life to a goal, not to people and things. It's a basic law, my dear friends. That doesn't mean हमें किसी के साथ कनेक्शन नहीं करना है, हमें घर में अकेले रहना है, ऐसे नहीं कह रहा हूं. कनेक्ट विथ लॉट्स ऑफ पीपल, नथिंग रॉन्ग. लेकिन अगर वो इंसान चले गया, लेट दैट पर्सन गो. डू नॉट बेग. रिस्पेक्ट एंड लव लूजेस इट्स वैल्यू व्हेन यू बेग फॉर इट. अगर भीख मांगनी पड़े वो प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, मजा नहीं है मेरे दोस्त, मजा नहीं है. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट. Great, my dear friends. Go ahead, ask your question. You can raise your hand if you want to talk to me directly. You can just raise your hand. I will put you in a spotlight and you can ask me whatever you want. Otherwise, just post your question in the chat box. Post your questions in the chat box. I am waiting for your questions. I really love your questions. Actually, मैं ये गणपति का टाइम में सोच रहा था कि एक भी सेशन ना लूं, बिकॉज आप भी मोस्टली बिजी रहेंगे, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास जाना है एंड ऑल. लेकिन बोला कि यार बहुत दिन से नहीं लिया है सेशन, शायद 5 दिन हो चुके हैं गणपति के, चलो आज सेशन ले लेते हैं. और इसलिए मैंने ये आज का सेशन लिया, बिकॉज आपके सवाल बहुत जबरदस्त रहते हैं. यू नो, आई लर्न अ लॉट. मैं खुद बहुत सीखता हूँ आपके सवालों से. ट्रस्ट मी, कभी कभी जो आप ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हो, मुझे उसका आंसर परफेक्टली पता नहीं होता, बट व्हेन आई स्टार्ट सेइंग लाइक यस लेट मी आंसर, तो मुझे वो डॉट्स वो कनेक्ट हो जाते हैं एंड आई डिराइव दैट आंसर. वो डिराइव मैं नहीं करता, वो यूनिवर्स भेज देता है. या फिर मैं ऐसे कहूंगा, आई डोंट नो वेदर यू बिलीव इट और नॉट, आप जो भी सवाल पूछते हैं, आप जो भी भगवान को मानते हैं, जो भी एनर्जी को मानते हैं, वो एनर्जी मुझे गाइड करती है. मैं सिर्फ एक जरिया बन जाता हूं वो टाइम पे आपको कुछ गाइड करने के लिए. So I feel really blessed whenever I help you. You know, ultimate happiness, trust me, my dear friends, ultimate happiness is when you help others. When others are smiling, others are happy because of you. Nothing more than that. It's an amazing thing. Great. So let me go to the next question. So quite big question. Let me read that, my dear friends. Just give me a few seconds. Wow. So this is an amazing question actually. This is an amazing question. यहाँ पे सवाल आया कि सर जो मैं सक्सेस सॉन्ग मैंने बनाया है, वहां से मुझे इतना ड्राइव नहीं आ रहा है. आई एम नॉट गेटिंग दैट ड्राइव. लेकिन मुझे ड्राइव कहां से आ रहा है? ड्राइव मतलब एक फील होता है ना, एक मूड बन जाता है. लेकिन वो जो ड्राइव आ रहा है वो कुछ नेगेटिव चीजों से आ रहा है, मतलब पेन से आ रहा है, दर्द से आ रहा है. व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? समटाइम्स यू कैन कन्वर्ट योर पेन इनटू पावर. देखिए, हम कोई भी टारगेट अचीव करते हैं या फिर कोई भी जिंदगी में गोल हमें अचीव करना है, दो ही चीजों के लिए करते हैं. एक तो हम लोग पेन से दूर जाना चाहते हैं, पेन मतलब दर्द, जो भी दर्द है उससे दूर जाना चाहते हैं, या फिर प्लेजर को पाना चाहते हैं. ये दो ही चीजें हैं. तो अभी सक्सेस सॉन्ग जो कंसेप्ट है, ये प्लेजर को पाने का कंसेप्ट है. और आप कह रहे हो कि आपकी जिंदगी में जो पेन होता है, दर्द होता है, वहां से आपको ड्राइव मिल रहा है. व्हाई नॉट? सम पीपल आर ड्रिवन बाय द पेन, सम पीपल ड्रिवन बाय द प्लेजर. Pain and pleasure, it's a game of that. Sometimes people get that kick from anything, so you are getting that kick, that drive, that vibe from the pain. Why not? But make sure you convert that pain into power. Do not end your statement or whatever thought process on the negative note. Do not end on the negative note. Just complete it on a great higher vibration. It's okay to have the realization of pain, but at the same time, you should focus upon what you want.
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा डीन ग्रेजियोसी, आपने नाम बहुत बार सुना होगा, टोनी रॉबिन्स का वो बिजनेस पार्टनर है। तो उसने भी खुद बताया था, बिकॉज उसका बचपन बहुत हॉरिबल था, बहुत पंगे उसके जिंदगी में हुए थे। तो उसको जब पूछा कि यार तुझे जो सक्सेस पाना है वो क्यों पाना है, जब वो डीप 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 जाते गया तो उसने एंडिंग में बताया कि मुझे सक्सेसफुल जिंदगी में बनना है बिकॉज वो पेनफुल डेज में मैं फिर नहीं जाना चाहता। वो जो मेरे जिंदगी का जो बहुत खतरनाक समय था, वो समय में मैं फिर से नहीं जाना चाहता, वो उससे भाग रहा है, दूर जाना चाहता है। तो वो उसने उसके वो पेन को पावर में कन्वर्ट कर लिया है। सो डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बट अलॉन्ग विद दैट आई वुड से वो जो सक्सेस सॉन्ग आपने बनाया है, आई नो यू बीइंग द आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी, तो टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ये शायद आपको ड्राइव नहीं करेगा, ये शायद आपको ड्राइव नहीं करेगा। आपने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट यहाँ पे बताया है, बीइंग द आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी, बिकॉज यू बिलीव इन प्रोसेस अ लॉट, you believe in process a lot and as per my understanding, जितना भी मैंने रिसर्च किया है, आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो बेसिकली फियर ड्रिवन होते हैं, दे आर फियर ड्रिवन, दे आर सिक्योरिटी ड्रिवन, so they crave for that security a lot, and security come from some kind of discomfort, so they are driven by the discomfort. So if you are getting that push from that, why not, but make sure you end up on the positive note, that is I am repeating again and again, do not get stuck in that। अगर वो साइकिल में आप फंस गए तो फिर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना मुश्किल हो जाए। आई होप यू गॉट द आंसर। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, there is amazing quote by Gaurav, thank you so much man। so this is called power of mastermind, no pain no gain, exactly, no pain no gain। सच में ये बहुत जबरदस्त कोट है। जिंदगी में जब हमें पेन होता है, दर्द होता है, तभी हम लोग ग्रोथ के लिए कुछ तैयारी करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। सो वो पेन होना, वो दर्द होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, एंड गौरव यू आर ऑल्सो आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी, राइट? सो you are also driven by that pain, so amazing, I really appreciate it। so this is how we help each other, this is how we help each other। it's not like I know everything, no, you also have amazing knowledge, सिर्फ आप शेयर नहीं करते। सो आई वुड से शेयर दैट wherever you want to share something, this is our platform, this is your platform, you have full right to share। if you learn something new, अगर आपके पास कुछ एक जबरदस्त फॉर्मूला है किसी चीज को सॉल्व करने का, you can always share that। amazing, great। so let me know if you have any question, otherwise our time is almost up right now। You can raise your hand if you have any question, if you want to ask me anything, go ahead and ask me। And my dear friends, I am telling you, I am honestly following the system। जो भी system मैंने आपको सिखाई है, मैं honesty के साथ follow कर रहा हूँ, and I am experiencing miracles in my life। I am experiencing miracles in my life, and I am telling you, you are going to be really proud of me। So I am not saying with a lot of big feelings, I'm not saying in arrogance, I would say I have that belief, I have that belief। all of you going to be very happy, all of you। वो होता है ना, जब हमारा कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार कुछ बहुत बड़ा टारगेट अचीव करता है, हम लोग कहते हैं पता है तुझे, वो इंसान तुझे पता है, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई रिलेटिव, मेरा ही दोस्त है, हम लोग मिले कितने बार, फोटो दिखाओ, शुड आई शो यू द फोटो, अरे उनके ही में कम्युनिटी में। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू से, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू दिस फीलिंग। मुझे पता है, मतलब हर एक इंसान की इच्छा होती है ना, ऑब्वियसली मेरी भी इच्छा है कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ मेरा कनेक्शन हो जाए। तो हम लोग कहते हैं ना, वो सेलिब्रिटी पता है मेरा दोस्त है, वो पता है टीवी पे आता है, मेरा दोस्त है, देख मेरा उसके साथ मेरा फोटो है, बहुत जबरदस्त फीलिंग होती है। यू फील राइट, वो कॉलर नहीं है यहाँ पे, सो ऐसे कॉलर टाइट हो जाती है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू दैट मोमेंट। आई एम नॉट वर्किंग फॉर दैट मोमेंट, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, डोंट टेक मी रॉन्ग, don't take it otherwise, that is a byproduct। when you do your work in a fantastic way, rest of the things are going to happen। great।
ओके, सो यहाँ पे एक फाइनल सवाल मैं ले लेता हूँ. विच टाइप ऑफ वीडियोस आई शुड वॉच टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट? सो देयर इज नो नीड टू वॉच एनी वीडियो. आई वुड से you take help from everyone. Please don't misunderstand. You take help from all. Nothing wrong. देखो यार, कोलैबोरेशन जब हम लोग करते थे, यहाँ पे अभी लाइव एग्जांपल, मैं जब आंसर दे रहा था तो गौरव ने मुझे आंसर दे दिया कि यार नो पेड नो गेन. लेकिन मैं ये सोचता नहीं नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट इंसान हूं, समीर नारद बात करेगा, ये गौरव कौन है, उसने कैसे लिखा नो पेन नो गेन, उसका कोट में नहीं चुराऊंगा, वो कोट में नहीं इस्तेमाल करूंगा. समीर नारद क्या चीज है पता है क्या? गौरव कौन है? गौरव की हेल्प में नहीं लूंगा. ये मूर्खता की निशानी है. मैं ऐसे नहीं करूंगा. अगर कोई इंसान मुझे हेल्प ऑफर कर रहा है जिससे मेरा काम और आसान हो रहा है, आई विल डेफिनेटली टेक दैट हेल्प. दैट इज कॉल्ड एज कोलैबोरेशन. आई टुक दैट हेल्प एंड आई अप्रिशिएट गौरव फॉर दैट. सो इसका मतलब ऐसा नहीं है ना कि मैं गौरव पे डिपेंडेंट बन चुका हूं. आई जस्ट टुक हिज हेल्प, दैट्स इट. अगर नेक्स्ट सेशन में गौरव एब्सेंट है तो मैं ढूंढते नहीं बैठूंगा, अरे यार गौरव आजा मेरे भाई, अरे कोट कुछ तो बता यार, आंसर नहीं आ रहा है यार, अरे गौरव नहीं है मतलब अभी वो कोट नहीं बताएगा यार, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं तो गया. दिस शुड नॉट हैपन. ये नहीं होना चाहिए. आई शुड बी हैप्पी इफ समवन इज गिविंग मी द हेल्प, बट आई शुड बी हैप्पी इफ समवन इज नॉट गिविंग मी एनी हेल्प. यहां पे फिर से एक बार मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का ही कोट लूंगा कि मतलब उन्होंने कहा था अगर कोई इंसान कोई काम के लिए मुझे हेल्प नहीं करता तो ये बहुत अच्छी बात है. क्यों? बिकॉज वो काम मैं खुद कर लेता हूं और सीख जाता हूं. इतना पावरफुल कोट है. सो टेक हेल्प फ्रॉम ऑल माय डियर फ्रेंड्स, बट डोंट बी डिपेंडेंट. मतलब उनके साथ अटैचमेंट मत करो. अटैच टू योर गोल. वो गोल के साथ अटैचमेंट करो. Just attach yourself with your target, with your mission. बाकी के जो लोग हैं, जो सिचुएशन है, वो सब मीडियम से यार, वो चेंज होते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वो चेंज होते रहेंगे. इट इज ओके. लेट पीपल गो. इफ दे वांट टू गो फ्रॉम योर लाइफ, लेट देम गो. जस्ट से गॉड ब्लेस यू एंड लेट देम गो. लेट देम एंजॉय देयर लाइफ. यू कैन फोर्स समवन टू बी देयर इन योर लाइफ. सो दिस इज व्हाट आई कैन से. I hope you got the answer. Dr. Yogesh, thank you so much for your appreciation, man. You're awesome. And thank you so much from bottom of my heart to helping the humanity. It's not so easy being a doctor and helping people. You know, you're like God. You're like God. So God is working through you. You're healing people. Because जब health collapse हो जाती है यार, तो भगवान और डॉक्टर उस पर कुछ अंतर नहीं रहता. यू आर प्लेइंग अ बिग रोल. सो आई वुड से, यू नो, यू बीइंग अ डॉक्टर, whenever people are meeting you, obviously patients are meeting you, when you have a broad smile on your face, when you are full of positive energy, यार वो पेशेंट ऐसे ही ठीक हो जाएगा. 50 to 70% हीलिंग वहां पे हो जाएगी. जब आपको देखेगा, आपका जो ऑरा है, वाइब्रेशन है, वो जो फील करेगा, तभी वो हील हो जाएगा. गोली तो टाइम पास का काम करेगी. गोली टाइम पास का काम करेगी. एंड obviously you'll get a lot of patients. Why? Because people will praise you, and I know you have fantastic personality, such a fantastic height, body and all. You are phenomenal. So I want you to develop your amazing aura, amazing vibe, because you know, moment you touch someone, moment you look at someone, you transfer the energy. And you need to raise your aura. You need to work on your vibration. Because कैसे होता है कि डॉक्टर के पास जब कोई भी इंसान, मैं या फिर कोई भी इंसान जाएगा, तो यूजुअली वो दर्द से भरे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमें कंज्यूम करनी पड़ती है. तो आपको क्लींस करना खुद को बहुत जरूरी है. यू नीड टू क्लींस योरसेल्फ. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. इट इज योर ग्रेटनेस एंड आई रिक्वेस्ट यू टू रीड पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. अगर आपने अभी तक वो किताब नहीं पढ़ी है, प्लीज गो थ्रू दैट, रीड दैट बुक. इट कैन हेल्प यू अ लॉट to maintain your aura, to maintain your vibration. Amazing. So thank you so much everyone. So looks like there are no questions as of now, so we will stop here for today. Thank you so much for fantastic, amazing questions. आप ही ये सेशन को रन करते हैं. अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो मैं क्या करूंगा? Nothing. So big thank you to you. तो ये जो सेशन है वो आप रन करते हो यार. मैं तो सिर्फ टाइम पास के लिए बैठता हूं, एक जरिया
दैट्स इट। आप ही सवाल पूछते हो और आप ही मुझसे वो जवाब निकाल लेते हो। सो बिग थैंक्स टू यू, बिग थैंक्स टू यू। सो वी विल स्टॉप ओवर हियर। सो गौरव, यू वांट टू आस्क समथिंग? You can turn on your video if you really want to share or ask something, then I'll get that clue. कभी कभी गलती से भी हाथ ऊपर हो जाता है, टेक्नोलॉजी। Looks like you have turned on the video. Yeah, let me put you in a spotlight. Go ahead, my dear friend. Ask. हेलो सर। Yeah, go ahead. सर आपने बताया कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। अमेजिंग में ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल ट्रेनर का आपने जो मुझे 2-3 भेजा था अटेंड करने के लिए, yes, yes, yes. जैसे बॉब प्रॉक्टर का था, उनकी जो इंस्टीट्यूट में ट्रेनर्स रहते ना, right. उसमें एक एलिना करके थी, आपको आइडिया रहेगा तो। No, I really don't know. There are so many trainers actually in his team तो actually. Go ahead. उन्होंने मुझे फेसबुक पे कनेक्टेड थे, तो उन्होंने मुझे सामने से रिक्वेस्ट भेजा कि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप कनेक्ट करना चाहोगे। तो इंटरनेशनल ट्रेनर जब सामने से बोलते तो वाव हो जाते। Wow, exactly. तो उनके डेली कुछ ना कुछ है, उनके इंडिया के भी एसोसिएट्स है, तो वो भी कुछ ना कुछ पोस्ट डालते हैं, सामने से ट्रेनिंग मिलता है। Wow. बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत मैं अटेंड नहीं पाता, बट मजा आता है, अच्छी अच्छी चीजें जानने मिलती है। Wow. Great. तो ये एक्सपीरियंस था कि सामने से फ्री ऑफ कॉस्ट जब मिल रहा है ना, तो अटेंड नहीं करते, ऐसा भी रहता है, या मिनिमम कॉस्ट रहता है ना। बट मैं 99% नहीं 100% अटेंड करूंगा, कुछ नया जानूंगा उसमें से भी। Great. Amazing. और एक ही चीज है, जितना मतलब बोलते हैं ना सर, आप बोलते हैं ना कि ये वैल्यू की जो कदर नहीं है, मतलब एक मजेदार लोग मिलते हैं, अच्छी चीज जानने मिलती है, ऐसा है। Great. So keep doing that. I'm very grateful to Bob Proctor. God bless him. God bless Bob Proctor, because every month he is taking the session. Every month he is taking the session. हाँ, मुझे पता है बहुत सारी चीजें वो रिपीट करते हैं, लेकिन रिपीटेशन में मजा है दोस्त। आपको पता है, when you listen to the same speech again, you will say like, aha, इसमें ये पॉइंट बताया है, ये पॉइंट मुझे समझा ही नहीं था। Let me tell you, अभी मैं थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा हूँ। You are also in the part of mastermind. So अभी मैं थिंक एंड ग्रो रिच मुझे लगता है 3rd या 4th टाइम पढ़ रहा हूँ। आई एम ऑन द 2nd चैप्टर राइट नाउ, लेकिन वो 1st चैप्टर में मुझे ऐसे सीक्रेट पता चले यार, क्या बोलूं, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मैं आपको बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू शेयर यू दैट इन आवर मास्टरमाइंड। वी हैव द मास्टरमाइंड इन द मंथ एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू दैट फॉर श्योर। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी वो किताब पढ़िए, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। यार सर दोनों बुक्स है ना इतनी अमेजिंग है ना, मतलब ऐसे लगे पढ़ने से अच्छा आपके साथ वो ग्रुप में डिस्कस होता है ना, उसमें ज्यादा मजा आता है। कि कोई चीज मिस हुई रहेगी तो आइडिया मिलता है कि डिस्कशन करके क्या बेनिफिट्स है और क्या इसके यूज करने का तरीका है। Yeah, obviously that is called mastermind. Even I also learn from you. I told you, I also learn from you a lot. So यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप में से किसी को बुक रीडिंग के मास्टरमाइंड ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज अ डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एवरी मंथ वी रीड वन बुक, और वो बुक का जो समरी होता है वो मंथ एंड में उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो एवरी पर्सन हैज टू स्पीक फॉर 5 to 10 मिनट्स, और आपको जो भी बुक का जो समरी पता चला है आपको शेयर करना है, और उसके ऊपर जो भी मेरा समरी है मैं शेयर करता हूं। सो इट्स नॉट लाइक कि वहां पे मैं ट्रेनर होता हूं। वी आर लाइक मास्टरमाइंड। वी आर मूविंग टुवर्ड्स ओनली वन गोल, टू अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट्स मेंशन्ड इन द बुक। अगर आपको वो मास्टरमाइंड ग्रुप में ज्वाइन होना है, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन द व्हाट्सएप. I will tell you what is the process, what exactly we do, what is the fee for that and all, everything I will discuss with you. This is also amazing experience. मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ. Every month we are learning from Think and Grow Rich, Power of Subconscious Mind, miraculous books. So thank you so much Gaurav for your amazing insights. ओपन टेक्निक बताए ना, उसके लिए इंदू जी का एक वीडियो है. Yeah, there are so many videos. If you go on YouTube, so many videos. इंदू जी और मितेश जी बहुत अच्छी चीजें बताते हैं. तो मैंने एक टाइम अटेंड किया था, तो उन्होंने वो वीडियो भी शेयर किया था, तो मैंने देखा था. नितेश खत्री, राइट? हाँ जी हाँ. So by God's grace, you know what? I will tell you my experience. बहुत जबरदस्त इंसान है यार. मतलब मैं उनके साथ कैसे कनेक्ट हुआ. आई एम टॉकिंग अबाउट 2014 में ऐसे सर्च करते करते मैं उनके वेबसाइट पे पहुंच गया, और वेबसाइट पे वहां पे मेंशन किया था 1 day फ्री वर्कशॉप ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. 1 day 9 AM to 5 PM 1 day workshop on law of attraction for free, not a single penny.
और वो मितेश खत्री खुद इंटरनेशनल ट्रेनर है, और वो पुणे में वर्कशॉप था, सो आई बीन टू दैट इन 2014। उनके घर में वो वर्कशॉप था, उनके घर में वो वर्कशॉप था। बहुत जेन्युइन इंसान है, और जो मतलब उनका जो घर था, तो उनके घर में इतना बड़ा मतलब बुक्स का सेट है, माय गॉड, मुझे लगता है मिनिमम 500-600 बुक्स रहेंगे। बहुत बड़ा एक अलमारी जैसा था, और वहां पे बहुत सारे बुक्स थे, और उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम अटेंड किए यार। देखो, मैंने तो टोनी रॉबिन्स का बच्चा लेवल का प्रोग्राम अटेंड किया है, बच्चा लेवल का, अनलीश द पावर विद इन, जिसका टिकट वगैरह इतना कुछ महंगा नहीं है, 40-50,000। मितेश खत्री जी ने टोनी रॉबिन्स का डेट विद द डेस्टिनी, ये प्रोग्राम जो है, जो 6 लाख का है, 5 या 6 लाख का, वो अटेंड किया, वो भी लाइव, वो भी लाइव, नॉट ऑनलाइन। ऑस्ट्रेलिया में जाके, वो और उनके वाइफ ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने 5 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया है। सो रियली जेन्युइन पर्सन, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, आई लर्न फ्रॉम इट अ लॉट। वन डे वर्कशॉप में, और वो टाइम पे तो मैं बच्चा था, इन 2014 जब उनके पास में गया था सीखने के लिए, आई वॉज अ किड, one day I attended amazing journey, and I'm telling you, I'm very sure I'm going to attend Date with the Destiny. I know it is 5 lakh rupees, but I'm going to invest that. I'm going to invest that, and I'm planning to attend even Bob Proctor's program, which is 20 lakhs. See, when you announce to the universe, I know it is very big announcement from me right now, but when you announce to the universe, yes, I am going to do it, one day I'm going to do that for sure, then universe is going to create that setting. वो सब सेटिंग क्रिएट करता है, लेकिन हम लोग अगर मानेंगे ही नहीं ये पॉसिबल है, तो कभी नहीं होगा। यू हैव टू बिलीव फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन डू इट। फिर वो यूनिवर्स ऐसी चीजें करता है ना जो आप सोच नहीं सकते। सर मेरे को फ्री में इतने अटेंड करने मिल रहे हैं ना, अहमदाबाद के, उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी, गोल मास्टरी मैंने अटेंड किया था ना, स्नेह देसाई, स्नेह देसाई, वो भी बहुत जबरदस्त है। भूपेंद्र सिंह राठौड़, अरे कितने, मतलब मैं वही तो बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, आज ये लॉकडाउन की वजह से मतलब इंटरनेट कनेक्शन, टेक्नोलॉजी की वजह से इतना भर भर के मिल रहा है कि कोई इंसान नेगेटिव हो ही कैसे सकता है, वो मैं सोचता हूँ। नेगेटिव मतलब थॉट्स आएंगे कहां से, अगर ऐसी ट्रेनिंग आप कंटिन्यूसली अटेंड करेंगे। सर मैं क्या करता हूँ, जब फ्री रहता हूँ, कुछ थॉट्स आते हैं ना, तो अफर्मेशन चालू हो जाता है, लिख लेता हूँ, या बोलते रहता हूँ अपने आप को, मिरर टेक्निक, विजुअलाइजेशन कभी होता है कभी नहीं होता है, बट मैं बोलूंगा ना 90% में कवर करता हूँ, उसके बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं, और 100% करूंगा तो उसके और बेनिफिट्स दिखेंगे। जो लोग नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ ग्रुप में डालो, तो शायद से जो 3 से 4 जन रेगुलर फेसबुक पे है, और यहाँ पे जो 15 जन है, वो शायद से डबल हो गए, या तो एक ही सॉल्यूशन है, आप चार्ज बढ़ा दो। नहीं, वो कैसा है, देखिए मेरे दोस्त, जब कोई इंसान चमत्कार क्रिएट करता है तभी नमस्कार होता है, वो चमत्कार होने वाला है। जब मेरे एंड से बहुत बड़ा चमत्कार दिखेगा, देन पीपल विल फॉलो ब्लाइंडली। बहुत बड़े बड़े मतलब वो टाइम पे फॉलोअर्स बनते हैं। सर कैसा था, अपन ने बात किया था सक्सेस ज्ञान का, तभी मुझे आइडिया भी नहीं था, आपने मुझे वो कॉल पे बताया था कि मैं उसमें कर रहा हूँ सक्सेस ज्ञान के, जैसे अपना टेलीफोन कम्युनिकेशन, बट मुझे मालूम है कि क्या चीज का, मतलब एकदम इजीली किधर भी कनेक्ट हो सकते, उतना है। मैंने एक बिल्डर को ऐसे बात किया है, उन्होंने पूछा तेरा नंबर कहाँ से, मैंने बोला एक्सेस है, मैंने झूठ नहीं बताया, सच बताया, बट बोलते हैं ना कि वो बिल्डर भी मतलब ट्रस्ट से बात करने के लिए रेडी रहता है। राइट, keep following system my dear friend, keep following system, because you are in real estate. real estate में एक डील आपकी जिंदगी बना देगी, one deal, one big deal can transform your life. So have that belief, have that patience, वो एक बड़ी डील आएगी और जिंदगी चेंज हो जाएगी। and keep improving yourself. I'm not saying blind faith, I'm saying along with that you need to learn from the bapu people of your industry. वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या किया है। जब आप किसी से बात करने जाते हो तो स्टार्टिंग में क्या बात करनी है, अगर कोई ऑब्जेक्शन ले रहा है तो ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सेलिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये कंसेप्ट है, तो ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, क्लोज कैसे करना है, सेलिंग में क्लोजिंग भी एक पार्ट है, क्लोज कैसे करना है, इसके ऊपर यार मतलब इतनी खतरनाक ट्रेनिंग अवेलेबल है। You just listen to Harshavardhan Jain या फिर सोनू शर्मा, my God, unbelievable training they have provided. यार उतना भी करेंगे ना तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। या सो थैंक यू सो मच अगेन या फॉर योर फैंटास्टिक कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग, कीप फॉलोइंग। ऊपर से तथास्तु मिलता, तो जो अच्छी बात बोलेगे तो तथास्तु तो आना ही है, तो आपसे बात करके 100%. So God is always with you, always with you. God bless you so much, sir. Yeah, my pleasure. So great contribution over here by Gaurav, amazing. So we'll stop here for today. So till then, God bless you, enjoy and take care. Bye.